Morning, everyone. किसी का कोई डाउट? Anyone who want me to explain anything to start with? यार प्लीज लिख दिया करो ना, पता नहीं चलता किसने हाथ खड़ा किया है, कशिश ने और गगन ने। ओके गगन बोलो जी। हेलो मॉर्निंग गगन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी सर। जी कहता अपने एंग्लो अफगान वॉर्स लिखा जी, फर्स्ट एंग्लो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर्स। हाँ जी हाँ जी सर वो ना रीड आउट कर रहे थे, थोड़ा समझ नहीं आ रही सर कि में की हो गया कि नहीं होगा ना सर। कुछ नहीं होया, रोजा बस नहीं समझ। तीन गल्लां याद रखनी है। पहली गल सुनो, सब तो इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान ਦੇ ਥਰੂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜ਼ਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ठीक है। ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੇ हाँ जी ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ। रशिया। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਤੱਕ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਈਵਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿੰਗ ਫੈਂਸ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਹੁਤ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਕਾਮਨ ਐਨੀਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ ਪਰ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਸਟ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1857 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ। ਫਿਰ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ 1870s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਤੀ। अच्छा सर, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। बस ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी। All right, now there is Sanjogita and who was the other one who raised hand? एक बार वो भी प्लीज अपना नाम लिख दे। कशिश। ओके कशिश बोलो जी। कशिश did I like? हाँ जी कशिश। गुड मॉर्निंग सर। सर थर्ड एंग्लो अफगान वार के बारे में पूछना था। थर्ड के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, अभी हम सिर्फ सेकंड तक करेंगे, थर्ड को आगे जाके लेके आएंगे अभी जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है सर। सर बस ये डाउट था थर्ड एंग्लो सिख वार अफगान वार से रिलेटेड। ये बाद में कराऊंगा जब इसकी जरूरत आएगी, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, अभी एक मनीषा ने हाथ खड़ा किया, एक संयोगिता ने बोला हुआ है गुड मॉर्निंग सर, आर ट्रीटी ऑफ अम्बिसड ओपर पार्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और डिफरेंट? बेटा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की कैसे हो सकती हैं, पहले मैं आशु को ये मैसेज दे दूं, फिर मैं बाकी दो लोगों के डाउट देता हूँ। आशु देखो, एक ट्रीटी 1809 में हो रही है, तो वो तो महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ दोस्ती करने के लिए थी, तो वो सिख वॉर की ट्रीटीज कैसे हो सकती हैं बेटा, है ना? गलत हो गया ना ये तो लॉजिक। बाकी अगर तुम चाहो तो तुम भी हाथ खड़ा करो एंड मैं तुमसे भी बात करता हूँ। मीनवाइल संयोगिता। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर जो हमने सिख वॉर किया था, उस सेकंड एंग्लो सिख वॉर, उसके अंदर हमने किया था कि द ब्रिटिश सेंट शेर सिंह टू क्रश मूलराज। हाँ जी।
सर बट जो ये शेर सिंह है और जो रंजीत सिंह जी का बेटा था वो अलग अलग है ना दोनों? बेटा उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो वो वापस कैसे आएगा आफ्टर डेथ? यस सर सर तुमने एक वो सर सीरियल और देखा है, एक सीरियल आता है खिचड़ी, देखा कभी? यस सर। उसमें एक फैमिली है, सरदार फैमिली, उसके नाम याद है क्या है? नो सर। उनके भाई का नाम है परमिंदर, उनके बेटे का नाम है परमिंदर, उनकी बहन का नाम है यस परमिंदर, सर। यस उनकी वाइफ का नाम सर। भी परमिंदर। यस सर। दैट इज पंजाबी कल्चर बेटा। ठीक है, तो यस शेर सर। सिंह कितने हो सकते हैं ना? यस सर। सर एक और डाउट था कि हाँ जी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में वो साइन हुई थी मल्हर राव होलकर के साथ। हाँ जी सर सर बट उनका मर्डर नहीं हो गया था? बेटा, फिर वही बात। सेम नेम, ओके सर। बस खत्म। नो सर सर और हमने किया था कि जो रंजीत सिंह थे उनकी डेथ के बाद महाराजा जो रंजीत सिंह। यस सर। हाँ जी, बताओ क्या हुआ उनको? सर उनकी डेथ के बाद उनके सक्सेसर्स काफी रिबेलियस हो गए थे, तो सर उनका मर्डर हुआ था? हाँ जी, 3 बेटों का मर्डर हुआ था। ओके सर। सर और एक मेरे को सेकंड कैंपेन ऑफ सेकंड एंग्लो अफगान वॉर समझ में नहीं आ रहा। बेटा अभी तो मैंने समझाया है, आप लोगों ने ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं उसके। ओके सर। ठीक है, यस चलो सर, थैंक यू मनीषा सर। लुथरा। हाँ जी मनीषा बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर मेरे क्वेश्चन है। हेलो बेटा, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ा या तो अपना माइक का वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो। हाँ जी अब ठीक है, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि बुक हुआ था मैसूर आफ्टर 2P में कि वेल्सली ऑफर्ड सुंदा एंड हारपुनेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम टू मराठा व्हिच द लेटर रिफ्यूज। सर ये रिफ्यूज करने का रीजन क्या था? बेटा तुम्हें याद नहीं, मैंने बताया था मराठाओं को ये टेरिटरीज लग रही थी कि ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, ना तो इनकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ना इनकी कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, तो ये लेके करना ही क्या है हमने। अच्छा ठीक है। ओके सर। एक और क्वेश्चन सर, हाँ जी इसमें ये अपनी जो कौन सी थी, एक मिनट। सो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में इसमें लिखा होता है कि पंजाब 1.5 करोड़ दे नहीं सकता था, उनके हाँ पास जी। थे नहीं, तो गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से कश्मीर ले लिया। सर ये कैसे पे कर ली उन्होंने इंडेमनिटी, उनसे कैसे ले लिया कश्मीर? बड़े प्यारे बच्चे हो यार तुम सारे जिन्हें। तो ऐसा मानते हैं कि तुम हो ब्रिटिश, ठीक है, और अगला डाउट रवनीत कौर गिल का है, तो रवनीत कौर गिल को बना देते हैं हम पंजाब। ठीक है, गिल होंदे भी पंजाबी हैं, वैसे तो मैं भी पंजाबी हैं, और मैं बन जाता हूँ गुलाब सिंह। ठीक है, तुमने रवनीत को हरा दिया, तो रवनीत की टेरिटरी किसकी होगी? मैंने रवनीत को हरा दिया तो मेरी हो गई। तुम्हारी होगी। अब तुम कह रही हो रवनीत को कि 1.5 करोड़ रुपया दे दे और अपनी टेरिटरी अपने पास रख ले, आई डोंट माइंड। ठीक है, यस सर। तो रवनीत कह रही मेरे पास तो 1.5 करोड़ रुपए है नहीं अभी, तो मैं रवनीत के पास जॉब करता था और टैक्स टुक्स चोरी चोरी भी कर लेता हूँ, या ज्यादा टैक्स इकट्ठे करता हूँ, मेरे पास पैसे इकट्ठे ज्यादा हुए हुए थे। मैंने तुम्हें बोला जी मैं 50 लाख दे दूं, मेरे को कश्मीर का अलग से राजा बना दोगे आप, वो टेरिटरी इसको वापस मत करके मुझे दे दो। ओके सर। इतना ही सिंपल हो गया ना अब तो। हाँ जी सर। बस हाँ जी सर, थैंक यू। चलो फिर रवनीत का डाउट लेते हैं अब। रवनीत ने मेरे नाल लड़ना, उन्हें कहना सर मैनू तुसीं एवें हरवाता लड़ाई सवेरे सवेरे, मैं जितनी सी लड़ाई। चलो रवनीत बोलो। Good morning, sir. मॉर्निंग जी। Sir, Treaty of Allahabad, which doubt siga, this term that was signed with Shah Alam, हाँ he जी has to pay 50 lakhs in the case of indemnity. बेटा, शाह आलम थोड़ा दे रहा था, हाँ वो जी, शुजा दे रहा था। okay sir. और उसने शाह आलम ने सर 3 lakhs देने सीगे for निजामत निजामत। function. हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर वो इलाहाबाद से रेवेन्यू कलेक्ट करके देने सी. हाँ जी। Okay sir, thank you so much. ओके जी। केतन, आई सपोज दैट्स द लास्ट वन, कोई अगर रहेगा तो प्लीज नीचे लिख देना। केतन, हाँ जी केतन बोलो जी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर ट्रीटी ऑफ मैंडलोर जो था, हाँ जी तो
सर उसमें मल्हार और हॉलकर तो इनिशियली बैकग्राउंड में सर उसको तो मर्डर हो गया था ना सर उसका, तो सर अभी तो बताया, देखो मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया है कि तो मैंने सेम एक्चुअली नाम, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया कोई मैंने। बात नहीं, सेम नाम, डिफरेंट पर्सन विद सेम नेम। ओके ओके ऑलराइट, बस जी खत्म। सो शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो प्लीज। थिंग इज दैट कल जैसे आपका यूट्यूब में वो जो इंटरेक्शन विद न्यू स्टूडेंट्स था ना सर, हाँ जी तो उसका लिंक तो सर हम लोग को मिला नहीं सर ग्रुप पे। बेटा, वो आपके लिए नहीं था, इंटेंशनली नहीं था आपके लिए। वो न्यू स्टूडेंट का मतलब था जिन्होंने चंडीगढ़ में जनवरी फरवरी मार्च में एडमिशन ली थी, और वो लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठे हुए आराम से मजे ले रहे हैं और क्लास नहीं लगा रहे। ओके इसलिए उनको डांटने का लेक्चर था वो। तुम लोगों को काहे की डांट, तुम तो डेली पढ़ रहे हो मेरे से अभी। अच्छा सर, एक और लास्ट है ये हाँ है जी। कि सर आपसे थोड़ा मेरे को मतलब बात करना था रिगार्डिंग दी कोचिंग। हाँ हाँ, सर आपको कब कांटेक्ट करूँ आफ्टर द क्लास? अब क्विकली अभी पूछ लो तो छोटी सी बात ही है। तो सर छोटी सी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लंबा ही बात चलेगा वो। रिगार्डिंग व्हाट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि मैं ना अभी सुबह सुबह अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, उनको मैंने टाइम अलॉट करना शुरू कर दिया हुआ है। तो आप बताओ तो फिर मैं आपको बता दूं किस टाइम करूं। सर रिगार्डिंग द फुल कोचिंग, फुल कोर्स। फुल कोर्स के लिए बात करनी है आपको तो एक्चुअली क्या है सर कि मैंने भावना से बात किया था रिगार्डिंग द फुल कोर्स, सो आई एम कंफर्म्ड। सो मेरे को करंट अफेयर्स से लेके अभी सब कुछ मेरे को पढ़ना है। सो अगर कुछ ऐसा मतलब मेरे को अगर कोई फॉर्मेलिटी मेरे को क्लियर मतलब करना है आप तो एक काम करो, आप मेरे को ना 11 o'clock शार्प कॉल करना, ठीक है? ठीक है ओके। ओके जी। अभी संयोगिता मी टू सर प्लीज। क्या संयोगिता मी टू क्या? और ये अमनदीप कौर, अच्छा अमन तुमसे भी बात करें बेटा। अमनदीप कौर बोलो बेटा, क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग हाँ जी। सर। एंग्लो बर्मीज वॉर का कॉज क्या था? एंग्लो बर्मीज वॉर का कॉज क्या था? वही बेटा, बर्मा वालों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक तो इसका क्लैश हो गया आपस में तराई के रीजन में। दूसरा जो वो पूरी बेल्ट थी ना, असम के आगे की जो बेल्ट है, जो नागालैंड वगैरह का रीजन है, जो बर्मा के कंट्रोल में था, ब्रिटिश को एरिया दिख रहा था, वहां पे टिम्बर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ब्रिटिश को तो वो एरिया लेना ही लेना है, तो वो लड़ेंगे। ठीक है सर। और सर सिर्फ जो आपने करवाया यही याद करना है कि इनकी डिटेल्स भी, जैसे ट्रीटी ऑफ एंडाबो की डिटेल्स वगैरह भी करनी है? अच्छा मुझे एक चीज बता अमन, हाँ नाम जी क्या है? सर। पूरा नाम अमनदीप कौर, पंजाबी कुड़ी साडी, वेरी गुड। तो पुत्र मैनू गल दस, प्रीवियस पेपर देखने शुरू किए? नहीं सर। वेरी गुड। चलो आज ना तुम लोगों को मैं आगे खींचने की बजाय थोड़ा पहले एक चीज समझा देता हूँ। जब हम यूपीएससी या पीसीएस, ये सिर्फ पंजाब नहीं है, ये प्रोविंशियल सर्विस मान लेते हैं, ठीक है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस, पंजाब हरियाणा हिमाचल किसी की भी तैयारी करनी है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सिलेबस देखें, ठीक है? कि यूपीएससी ने सिलेबस क्या दिया हुआ। जैसे सपोजिटली ना मैं मुगल्स पढ़ रहा हूँ और क्लास लगाई मैंने, और टीचर ने ना क्लास में करा दिया मुगल्स की कंक्वेस्ट करवा दी कि अकबर ने ये लड़ाई लड़ी थी, जहांगीर ने ये, शाहजहां ने ये, औरंगजेब ने ये, खत्म। फिर मैं देखूं सिलेबस में क्या था, तो सिलेबस में लिखा हुआ था मुगल्स की एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल्स का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मुगल्स का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मुगल्स की पेंटिंग्स। वो तो टीचर ने कराई नहीं। सबसे पहले मुझे देखना है सिलेबस, ठीक है? क्या मेरा सिलेबस क्लास में कंप्लीट हो रहा है या नोट्स के साथ कंप्लीट हो रहा है? टीचर दो तरीके से कराएगा ना, या तो वो सारा कुछ डिक्टेट करेगा या वो एक्सप्लेन नरेट करके प्रिंटेड नोट्स देगा कि बेटा इनको एक बार वहां से पढ़ना है अब आपने। तो सिलेबस के लिए मेरे पास क्लासेस प्लस नोट्स होने चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है प्रीवियस पेपर्स, और प्रीवियस पेपर्स ना 10 साल के नहीं करने होते, 5 to 7 years के देखने होते हैं। अब इसमें प्री वाले पेपर भी देखने हैं और मेंस वाले पेपर भी देखने हैं। अब जब मैं लेट्स से कि मैंने ना आज 1857 का रिवोल्ट का टॉपिक क्लास में खत्म कर लिया, फिर जो मैंने नोट्स बनाने का तरीका बताया था याद है ना, कि क्लास लेक्चर के साथ एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स ऐड कर लो, प्लस प्रिंटेड नोट्स वाले पॉइंट्स ऐड कर लो, प्लस अगर तुम्हारा मन करे कोई भी बुक पढ़ने का वो ऐड कर लो। जब तुम्हारे ये नोट्स बन गए, वंस यू आर डन विद नोट्स मेकिंग, अब तुम प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करके देखो कि मैंने 1857 के लिए सारे सोर्सेज पढ़ लिए। अब जब मैं प्री के क्वेश्चंस देखती हूँ मुझे आते हैं कि नहीं आते? सिमिलरली मेंस के क्वेश्चंस देख के देखो पहले तो क्या मुझे लिखना, मुझे समझ आ रहा है इसमें पूछा क्या हुआ है। अगर समझ आ रहा है फिर आंसर लिख के, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इवैल्यूएशन, राइट? टीचर तुम्हारा ये आंसर चेक करके बताएगी जो तुमने लिखा है
अब फैक्ट तो देखो ना, ऐसा होगा कि केतन भी सेम लिखेगा, संयुक्ता भी सेम लिखेगी, पल्लवी भी सेम लिखेगी, अमन भी सेम लिखेगी। फैक्ट्स तो वही होंगे ना कि 27 के रिवोल्ट के ये कॉजेज थे या ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए। फिर तुम्हारा आंसर को ज्यादा मार्क्स क्यों मिले, उसके लिए भी कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो फिर वो टीचर तुम्हें ये बताए, जब तुम्हें ये टेक्निक भी आ गई, तुम्हारे प्री के क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे हैं, अब तुम्हारी तैयारी कंप्लीट है। तो ये सारी स्टेजेस हैं, तो पढ़ने के साथ साथ बेटा इन स्टेजेस को भी फॉलो करना है हमने। ठीक है सर। बस तुम सबने आज से एक चीज याद रखनी है, यू ऑल आर द वॉरियर्स। तुम सारे आज से लड़ाई लड़ने जा रहे हो एक यूपीएससी के साथ। तो पहले तैयारी करने से पहले देखो एनिमी की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसको तैयार कर लो बस, ठीक है। फिर प्रीवियस पेपर देखो वो क्या क्या पूछ लेते हैं, उनकी उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं, फिर अपना आर्सेनल तैयार कर लो। ठीक है सर। ठीक है संयुक्ता, मी टू रिगार्डिंग कोचिंग सर। ओके संयुक्ता, आप भी मुझे 11:10 पे फोन कर लेना, 10 मिनट में केतन को फ्री करके आपसे बात करूंगा। पल्लवी सेम क्वेश्चन, मतलब संयोगिता वाला क्वेश्चन है कि एंग्लो बर्मीज वार वाला क्वेश्चन है? पल्लवी क्या क्वेश्चन है बेटा? और कोई रह गया आप बात करने के लिए? हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। एंग्लो अफगान हो गया तुम्हारा क्लियर पल्लवी? फिर इन दैट केस नहीं सर, एक्सीलेंट। चलो आओ पल्लवी, फिर तुम्हारे से बात करी जाए। दिस इज गोइंग टू बी आई सपोज द लास्ट स्टूडेंट, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पल्लवी शर्मा, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर आपने कल भी बताया था ना कि जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि जैसे जो फर्स्ट एंग्लो वॉर थी इसमें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शाह शुजा को राजा बना दिया था। हाँ जी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर जब वो भाग गया था, अफगान वॉर, हाँ अफगान वॉर, हाँ। और जब मतलब सक्सेसर जो मोहम्मद याकूब था उसने साइन की थी गंडमक की, लेकिन सर जो मतलब राजा होता है, जो उसका सक्सेसर होता है वही ट्रीटी साइन करेगा ना। हाँ जी, राजा तो शाह शुजा था और ये हाँ। जो सक्सेसर था ये तो शेर अली खान का था, बेटे के आगे बेटा होगा। हाँ 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 हाँ। तो फिर ये किसने कैसे कर ली? बेटा दोबारा समझ, छोटी सी बात है, टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को कंफ्यूज मत करो, इजी रखो। देखो ए बी कर देते हैं, नाम तुम याद अपने आप करती रहना, मैं तुम्हें ए बी करके समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ। ए नाम का राजा अफगानिस्तान में राज कर रहा था, हाँ जी। राइट। उसके खिलाफ बी नाम के राजा ने रिवोल्ट कर दिया। ओके। तो ए वाला भाग गया। हाँ जी। अब जब ए वाला भागा तो सविता मैम 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ। जब ए वाला भागा तो जो उसका सक्सेसर है हम उसके साथ ही डील करेंगे ना, हमारे लिए तो ब्रिटिश के लिए तो लीगल वही है सर। लेकिन राजा तो मतलब शाह शुजा था ना बेटा। दोबारा भागा समझना, तो दोबारा पेशेंस के साथ। ए राम के राजा को मैं ना तुम्हें इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं समझा रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ आए, इसको ध्यान से सुनना। ए नाम के राजा को ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। बी नाम का राजा को लोकल अफगान्स ने खड़ा कर दिया। ओके। ब्रिटिश किसके साथ डील करेंगे? ए के साथ ही करेंगे ना वो तो। हाँ जी। वो तो उसी के सक्सेसर को मानेंगे ना अपना। हाँ जी। आप क्लियर हो गया? ठीक है सर, मतलब मोहम्मद याकूब जो था वो शाह शुजा का सक्सेसर था। हाँ अब देखो पकड़ लिया ना तुमने सही से। ओके सर। संगीता मैम अगर आप चाहो तो आप दोनों क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आज से बिल्कुल नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, एज आई टोल्ड। आप ये क्लास लगा लो, फिर हम 11:30 बजे फोन पे बात कर लेंगे। एंड सर हाँ जी हाँ जी सर जो महाराजा रंजीत सिंह के जैसे बेटों के नाम थे, ये इम्पोर्टेंट है याद करने, क्योंकि कल मैंने एक पता नहीं गूगल ही किया था शायद, उसमें लिखा हुआ था कि जो महाराजा रंजीत सिंह है इनके 3 बेटे हैं। आपने 4 लिखवाए थे ना, जो उन्होंने कहा था कि जो बेटा है नौनिहाल सिंह, ये उनका रंजीत सिंह जी का बेटा नहीं है, वो खड़क सिंह का बेटा था। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक पढ़ा तुमने, गलत नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ सीक्वेंस में पढ़ना है इनको कि ये 3 लोग थे जिनकी डेथ हुई है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे ना इनमें से कौन महाराजा रंजीत सिंह जी का बेटा है, वो ये नहीं पूछेंगे। ठीक है सर। ओके जी, बाय। थैंक यू सर। बाय। लास्ट में एक बार सविता से बात कर लूं एंड देन वी विल मूव ऑन। हाँ जी सविता जी बोलो।
सर मेरा जो डाउट था मैंने लिख दिया कि whether I will continue with this lectures or you will allot some other batch. बेटा देखो मैंने आपको कहा था कि हमारा शाम को बैच शुरू होने जा रहा है 1 से, हाँ जी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। और जो यूपी वाला एग्जाम है ना, वो रात को जब मैंने ध्यान से पढ़ा, वो यूपी पीसीएस का एग्जाम नहीं है, वो लोअर सर्विसेज का एग्जाम है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज का। ओके सर RFO एंड PSC दोनों का है सर, वो यूपी PCS एंड RFO। दोबारा चेक कर लो अब एक बार, मैं भी आपको एक वीडियो भेजता हूँ, वो भी आप देखना, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। चलो शाम को पल्लवी 5 बजे का होगा, सबको मैसेज आ जाएगा बेटा। चलो पढ़ लें, बहुत टाइम हो गया, वी हैव ऑलरेडी स्पेंट गुड 20 मिनट्स टॉकिंग ओनली। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक की हेडिंग लिखो, इंपीरियल आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटिश राज। इंपीरियल आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटिश राज। इसको पहले मैं तुम लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा दूं, फिर मैं इसके पॉइंट्स डिक्टेट करवाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? देखो, ब्रिटिश इंडिया आए हैं 1600 में ट्रेड करने के लिए। फिर इन्होंने देखा आकर इंडिया में कि जो मोनोपोली राइट इनको चाहिए, जिस तरह की मोनोपोली से ट्रेड प्रॉफिटेबल बनता है, उसके लिए इनको अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स के साथ तो लड़ना पड़ेगा, इंडियन के साथ भी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज इनको वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ट्रेड जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है? तो अब इनको समझ आया धीरे धीरे कि इनको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ डालना ही पड़ेगा किसी तरह से। इसीलिए फिर इन्होंने वो पूरी स्ट्रेटजी बना ली थी अपनी। बाय द टाइम औरंगजेब की डेथ हुई, तब तक ये 100 साल लग गए पूरी बात समझने में, ठीक है, सारे चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करते हुए। अब जब इनको पूरी बात समझ आ चुकी थी, तो प्लासीज एंड बक्सर्स की लड़ाइयां लड़ने के बाद उन्होंने अपने लिए दीवानी राइट्स इसीलिए मांगे थे कि हम इंडिया से पैसा इकट्ठा कर सके, ठीक है? तो अब जब इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो गई 1765 के ऑनवर्ड्स, जब ये दीवान अपॉइंट हो गए, अब ब्रिटिश को सबसे पहले ना एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसर्न था वो ये था कि जो इंडिया और इंडियंस हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो हमें अभी तो बहुत अच्छे से नहीं आती है लैंग्वेज, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो डाइवर्सिटी बहुत है लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज तो है नहीं हमारे देश में, ना ही अंग्रेजों को हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स की प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है? तो ये लोगों ने क्या सोचा कि अगर एकदम से हमने इंडियंस पे अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर इम्पोज करने की कोशिश की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हमारे खिलाफ थोड़े से अग्रेसिव हो जाएं। तो हम क्या करते हैं, अभी हम एक ओरिएंटलिज्म की आइडियोलॉजी से काम शुरू कर लेते हैं। ओरिएंटलिज्म की आइडियोलॉजी थी टू नो इंडिया, कि इंडिया को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, इनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं, इनके कल्चर को समझ लेते हैं, मनुस्मृति को पढ़ लो यार, जो इस्लाम के शरीयत के कानून हैं वो समझ लो, पता तो चले कि सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम्स क्या है, यहाँ के ट्रेडिशंस क्या है, यहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है। अभी तो कोई नॉलेज ही नहीं है, टू नो इंडिया। और फिर इन्होंने बोला जब तक हम अच्छे से नहीं समझ जाते तब तक क्या करते हैं, टू रूल द रूल्ड इन द रूल्स ऑफ रूल्ड। तब तक अभी हम ना इनके ऊपर मॉडर्न लीगल सिस्टम जैसा इंग्लैंड का है, या जैसा आज हमारे देश में, या रूल ऑफ लॉ जिसको हम बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको हम बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली IPC CRPC लिखे जाते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं अभी वो नहीं करेंगे, जिन पे राज करना है, जो हमारे रूल्ड है, टू रूल द रूल्ड, उन पे राज करना, उन्हीं के रूल्स में, उनके पुराने चीजों को पढ़ के समझ के उसके अकॉर्डिंगली अभी हम इंडिया पे रूल कर लेते हैं, राइट? ये थी ओरिएंटलिज्म की आइडियोलॉजी। अब पहला पॉइंट लिखो, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म में लिखो, द नेम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, द नेम ऑफ वॉरेन, WARREN, वॉरेन हेस्टिंग्स। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। द नेम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स स्टैंड टॉलेस्ट इन दिस आइडियोलॉजी। सबसे बड़ा नाम वॉरेन हेस्टिंग्स का है, स्टैंड टॉलेस्ट
in context of this ideology which believes, जो ideology believe क्या करती है, which believes to rule the conquered people, जिन लोगों को जीत लिया, to rule the conquered people through their own rules and laws, उन्हीं के कानूनों के accordingly उन पे रूल करते हैं, to rule the conquered people through their own rules and laws, LAWS. अगला पॉइंट, accordingly Warren Hastings himself established Warren Hastings himself established, WARREN, Warren Hastings, HASTINGS, Warren Hastings himself established Calcutta Madrasa in 1781. अब इस मदरसे में ब्रिटिश ऑफिसर्स को भेजा जाएगा जो मौलवी साहब के साथ बैठेंगे और उनसे जो लीगल सिस्टम चला आ रहा था फ्रॉम द टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, मुगल इंडिया, राइट। कब दिल्ली सल्तनत कब इस्टेब्लिश हुई है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, तो 1200 के आसपास से, 1200 से लेकर अब हम कौन से साल में आ गए? 1781 में। तो पिछले ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 6 सेंचुरीज है ना, 580 साल से इंडिया में यही तो चल रहा था, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो इस्लामिक था। तो इन्होंने बोला कि एक बार वो समझना शुरू करते हैं, तो कलकत्ता मदरसा बनाया गया। फिर दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, in 1784 William Jones, the judge of Supreme Court at Fort William, Calcutta, William Jones, the judge of Supreme Court at Fort William, Calcutta, established Asiatic Society of Bengal. Established Asiatic Society of Bengal. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम क्या था कि इंडिया के पुराने लिटरेचर का, संस्कृत हो, पर्शियन हो, अरेबिक हो, इसका ट्रांसलेशन किया जाए और इंडिया को बेटर अंडरस्टैंड किया जाए। रवनीत बेटा कौन सा पॉइंट रिपीट करना बता दो एक बार। In 1784 William Jones, the judge of Supreme Court at Fort William, Calcutta, established Asiatic, ASIATIC, Asiatic Society of Bengal, जिसका काम था ट्रांसलेशन करना एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की टेक्स्ट की इंग्लिश लैंग्वेज में, संस्कृत से इंग्लिश, पर्शियन, अरेबिक से इंग्लिश। तो ये इसलिए बनी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय विलियम जॉन्स। केतन मैं थोड़ा डिक्टेट कर दूं, फिर मैं इसको और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूं, ठीक है? डिक्टेट करने के बाद एक्सप्लेन कर दूं, विल दैट बी फाइन? ऑलराइट, तो अब एशियाटिक सोसाइटी के साइड पे स्टार लगा के लिखो एक पॉइंट। विलियम जॉन्स himself translated अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास, which is the first Indian drama to be translated into English. Which is the first Indian drama to be translated into English. बाकी इन लोगों ने भगवत गीता को, हितोपदेश को, वेदास को, सबको ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया था, ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इसके बाद, ठीक है? अगला पॉइंट, in 1794 Jonathan Duncan, in 1794
जॉनर JONATHAN, Jonathan Duncan, DUNCAN. Jonathan Duncan established Sanskrit College at Banaras. संस्कृत कॉलेज एट बनारस। तो बनारस में एक संस्कृत कॉलेज भी स्टैब्लिश हो गया, कलकत्ता में मदरसा बन गया, एशियाटिक सोसाइटी बन गई। अब ये इंडिया के पास्ट को, हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को सीखना समझना शुरू कर चुके हैं। अगला पॉइंट, इन 1800 लॉर्ड वेलेस्ली, जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली established Fort William College at Calcutta. Fort William College at Calcutta, where the young officers of the British Company, were to be trained in India on their arrival. सो कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो फैक्ट्री है, वहां पर एक स्पेशल कॉलेज बनाया गया। आप इसको ऐसा बोल दो कि जो IAS ऑफिसर्स बने आज, उनको हम लबासना भेजते ना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ट्रेनिंग के लिए, वैसे ही उनको यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया कि इंडिया जाओ, फोर्ट विलियम कॉलेज में बैठो, ताकि तुम लोगों को हम बता सकें कि जिन लोगों पे तुमने रूल करना है वो लोग हैं कैसे, तुम्हें उनके कल्चर की इंफॉर्मेशन दें, नॉलेज दें, तुम्हें इंडिया का कुछ टेक्स्ट पढ़ा दें, तुम्हें पता हो कि शरीयत के कानून क्या हैं, मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली हिंदू सोसाइटी क्या बिलीव करती है। तो वो सब में उन लोगों को ट्रेन करके फिर हम उसके बाद इसको इंडिया में कंटिन्यू कराएं। लेकिन हुआ क्या कि जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज बना, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहाँ पे डायरेक्टर्स थे, वो थोड़ा सा ना इसके अगेंस्ट हो गए। उनको ये लगा कि जिन लड़कों को हम इंग्लैंड से ट्रेन करके इंडिया भेजते हैं रूल करने के लिए, इंडिया जाते ही तुम उन लोगों को कर देते हो, इंडिया के कल्चर के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हो। जैसे ही वो इंडिया के कल्चर के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, तो भाई ये लोग तो इंडिया से थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये इंडिया से इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि ये इंडिया के ऊपर बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग रूल कर पाएंगे। कहीं ये इंडिया के तरफ ना थोड़ा वो सॉफ्ट कॉर्नर ना बन जाए, सॉफ्ट हार्ट ना रख लें, इसलिए इस कॉलेज को जल्दी ही बंद करवा दिया गया और इंस्टेड लंदन में हेलेबरी कॉलेज इस्टेब्लिश करवा दिया गया। तो लाइन पूरी कर देते हैं। Lord Wellesley established Fort William College 1800 में, but soon it was discontinued. And instead Haileybury, Haileybury, Haileybury College was established in England. Haileybury College was established in England because it was felt that such a training in India may result in the British officers getting Indianized. हेलेबरी कॉलेज 1806 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कर दिया गया। अब इसका जो रोल था ना, ओरिजिनल रोल, वो खत्म हो गया या डिल्यूट कर दिया गया। कॉलेज तो चलता रहा, यहाँ पे बाकी क्लासेस उनकी लगा देते थे, लेकिन जो ओरिजिनल प्लान था कि इंडियन कल्चर के बारे में ज्यादा यहाँ पढ़ाएंगे, वो बंद करवा दिया गया। ठीक है, अब कंक्लूडिंग लाइन से पहले एक स्टार पॉइंट लिख लो। इन 1776, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंड अलोन फैक्ट है, ये अलग से करना होता है इसको याद। इन 1776 हेलहेड एक आदमी का नाम है, ट्रांसलेटर है। हेलहेड
prepared Gentoo law code. Gentoo law codes. Gentoo law codes क्या है? ये ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति या इंडिया के जो हिंदू लीगल सिस्टम थे उनकी ट्रांसलेशन थी. Gentoo law codes. Gentoo 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 law codes. राइट. अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ बनाओ. ये लाइन लिखवाने के बाद मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है और फिर केतन ने जो बोला था मैं वो भी रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा. Orientalism highlighted classical glory of India as produced by Aryans. वो जो आर्यंस आए थे ना, आर्यन इन्वेजन्स जो हुए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ अभी मैं. As produced by Aryans, but it also emphasized on the fact that there was subsequent degeneration which in turn justified the authoritarian rule of the British. केतन, बहुत अच्छा हुआ यू आस्क्ड मी टू गिव सम एग्जांपल्स. मैं परहैप्स ये स्किप कर जाता. तुम्हारे कहने पे मैं एक चीज और एडिशनल समझाने जा रहा हूं. ये एक इटालियन राइटर है गगन. जिंटू लॉ कोड ना जिदा मनुस्मृति है या बाकी इतना दी जिन्नियां इंडियन किताबां लिखियां जिन्हां विच ना हिंदू सोसाइटी दे कुछ रूल्स दसे हुए हैं, ये ओदी ट्रांसलेशन है. अंग्रेजी ट्रांसलेट करती थी हेलहेड ने. राइट. प्रिंस क्या रिपीट करना बेटा? गगन तेरा डाउट क्लियर पुत्र. एंड प्रिंस बेटा आप बताओ क्या रिपीट करना है? प्रिंस लास्ट लाइन मैंने बोली थी subsequent degeneration which in turn justified authoritarian rule of British. Degeneration नहीं बेटा, degeneration. Degenerate कर जाना मीन्स खराब हो जाना. Haileybury, Hailey, Hailey, Bury, Haileybury. 1806 में बना था Haileybury कॉलेज. ओके केतन, एक बात बताता हूँ पहले बिफोर आई एक्सप्लेन दिस. मैं ना क्लास में जब फिजिकल क्लास चल रही होती है विच नाउ सीम्स टू बी अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम इन नियर फ्यूचर, तो मैं बच्चों को पता क्या बोलता होता हूँ कि यार क्लास में ना जितने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होंगे उतना बाकियों को फायदा होगा. उससे क्या होता है कि वो ना टीचर को प्रोवोक करते हैं कि टीचर ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ाए. एक वो क्लास होती है जिसमें ना सब लोग सिर्फ चुपचाप बैठ के सुन रहे होते हैं और टीचर जितना बता दे उतना ही करते हैं. फिर एक क्लास वो होती है जिसमें लोग बड़े जेन्युइन डाउट्स पूछते हैं और वो जेन्युइन डाउट पूछने वाले आउट ऑफ 50-60 स्टूडेंट्स एक या दो होते हैं. उनसे बाकी सबको बड़ा फायदा होता है कि टीचर ना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस कर देता है. फिर उसी तरह उस क्लास में एक या दो लोग वो होते हैं जिनको होता है हीरो बनने का शौक कि चलो यार हम भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, सब हमारी तरफ भी देखेंगे. और वो इतने घटिया क्वेश्चन पूछते हैं, इतना टाइम वेस्ट कराते हैं, तो वो वाले लोग नहीं होने चाहिए. संस्कृत कॉलेज विश्व एट बनारस, तो उन लोगों को तो मैं डांट देता हूँ कि यार मैंने नहीं तुम्हारी बात का आंसर देना, तुम मेरे से अकेले में पूछना.
बट जब इंटेलिजेंट स्टूडेंट जेन्युइन बात पूछते हैं ना तो समझाने का मजा आना शुरू हो जाता है। तो ये एक इटालियन राइटर है जिनकी बुक है द प्रिंस। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस? इसके बारे में किसी ने सुना पड़ा हुआ है? कुछ हाथ खड़ा हुआ है, किसने किया है लिखना? गुणराज, ओके गुणराज तुमने पढ़ा हुआ है, ओके। शिवानी ने पढ़ा हुआ है, शानवी, आई एम सॉरी, शानवी ने पढ़ा हुआ है। चलो पहले शानवी से पूछते हैं, बोलो शानवी। Good morning, sir. मॉर्निंग, क्या पढ़ा बेटा द प्रिंस के बारे में, क्या जानती हो? So Machiavelli was talking about how to rule, and Okay. you have also played in class how he, during the world history classes, that how he gave certain guidelines on how to rule people, and how if a king goes against them, he will be dethroned. वेरी गुड, ठीक है। गुणराज से भी पूछ लें एक बार, गुणराज ने क्या पढ़ा हुआ है, इफ ही कैन ऐड समथिंग। हाँ जी गुणराज। सर मैकियावेली ने फिर मतलब जो शानवी ने बोला था अबाउट रूलिंग, उसने मैकियावेलिज्म का कॉन्सेप्ट फिर इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन काइंड ऑफ सेल्फिशनेस, लाइक मतलब विदाउट एथिक्स एंड विदाउट मॉरल्स, विदाउट कंसीडरिंग अबाउट द अदर पर्सन, अपना अपने इंटरेस्ट्स को एट द फोरफ्रंट रखना, उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस हुआ था इसके थ्रू। ओके चलो आज तुम्हें इसके बारे में मैं एक दो बातें और बताता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हें ना कई जगह काम आएगा, इट्स नॉट जस्ट हियर बट एट सेवरल अदर प्लेसेस टू। ये आदमी जो किताब लिख रहा है ना प्रिंस, ये ना एक फ्यूचर प्रिंस के लिए लिख रहा है। इटली उस टाइम पे डिवाइडेड था, टाइम पे ये बुक लिखी गई, तो इसने किसी फ्यूचर के इंसान को जो कभी इटली में आए, उस राजा बने इटली का, उसको एडवाइस कर रहा है कि यार सुन मेरी बात, अगर तुझे एक यूनाइटेड इटली दोबारा बनाना है तो तुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं और उन चैलेंजेस को कैसे तूने टैकल करना है, ठीक है? और कैसे तूने फिर ये इटली बनाना है, ये उसके लिए है। अब ये क्या बताता है कि 3 तरह के स्टेट्स हैं, जो इटालियन पेनिनसुला था उसके अंदर 3 तरह के स्टेट्स थे। कुछ में मोनार्की हुआ करती थी, मोनार्की मीन्स वहां पे राजा होता था। कुछ में रिपब्लिक्स हुआ करती थी, मीन्स वहां के लोग अपने राजा खुद चुना करते थे, इलेक्शन होते थे। और एक जो थी वो थी कैथोलिक स्टेट, जैसे कि रोम है, जहाँ पे खुद पोप पादरी जो है वो खुद राज करता है, पेपल किंगडम जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल इटली में होती थी ये। तो अब मैकियावेली क्या बोलता है कि जो भी राजा, एक राजा शुरू करेगा इटालियन यूनिफिकेशन, अल्टीमेटली वो इन 3 तरह के डिफरेंट स्टेट्स के साथ लड़ाई लड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनार्की की। जब वो मोनार्की वाले देशों को जाके जीतेगा ना, तो होगा क्या कि लेट्स से कि ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि ए नाम का कोई देश है, इस ए देश पे एक्स नाम का राजा राज कर रहा है। अब वाई नाम का कोई दूसरा राजा आया और उसने आके एक्स नाम के राजा को हरा दिया और ए देश के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। तो मैकियावेली कहता है अगर ये वाई नाम का राजा ए देश की जनता की लैंग्वेज को चेंज नहीं करेगा, उनके कल्चर्स ट्रेडिशंस में इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर ये ए नाम की जनता जो है वो हिंदी बोलती है तो ये बोलते रहो हिंदी, मैं तुम्हारे को अपनी लैंग्वेज नहीं दूंगा। तुम्हारे देश में सती होता है, होने दो, मैं नहीं रोकूंगा। तुम्हारे देश में बाल विवाह होते हैं, होने दो, मैं क्यों रोकूं। अगर ये ऐसा राज करना शुरू कर दे टू स्टार्ट विद, तो ये जनता ना रियलाइज ही नहीं करेगी कि राजा बदल गया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता ना कि राजा कैसे बनते हैं। इनके लिए तो जिसको भगवान ने भेज दिया वो राजा बन गया, या जो उस फैमिली का था वो राजा बन गया। अगर इनकी डे टू डे लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस ना किया गया तो जो वाई नाम का राजा ना वो बड़ी इजीली अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर जाएगा। बस उसको 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। जो एक्स नाम का राजा था उसका एक फेवरेट ग्रुप था और एक डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप था जिसके अगेंस्ट था ये राजा, ठीक है? जो एक्स नाम का राजा था, पुराना राजा, उसका एक फेवरेट ग्रुप था और एक डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप था। वाई नाम के राजा को इस डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप को अपना दोस्त बना लेना है। अगर इसको दोस्त बना लिया ना तो फिर इसको कोई चैलेंज नहीं होएगा। ये जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है
ये इसको अपने आप बता देगा कि पिछले राजा के फेवरेट्स कौन थे जो तेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं, इनको एलिमिनेट कर दे, तो अब तेरा रूल यहाँ पे स्टेबल हो गया, कोई तेरे खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेगा, राइट। तो ब्रिटिश ने कुछ ऐसा ही कर लिया, उन्होंने इंडिया आए और इंडिया में आके इनिशियली जब उनको पावर मिली, उन्होंने ना तो हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, 1765 में उनको पावर मिली है, ठीक है, और 1813 के चार्टर एक्ट के साथ उन्होंने पहली बार बोला था कि अब हम इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे, which means 35 plus 13, that means 48 years, रफली 50 years लगा दिए। पहले 50 सालों में तो उन्होंने हमें रियलाइज ही नहीं होने दिया कि वो इंडिया जीत रहे हैं, इतने में वो बंगाल जीत चुके हैं, मैसूर जीत चुके हैं, मराठास जीत चुके हैं, सब तो जीत चुके हैं, वो अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। फिर पहला राजा कौन था यहाँ पे? मुगल्स। मुगल्स कौन थे? मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स के टाइम पे आखिरी ग्रेट राजा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया लगाया था। तो जो हिंदू कम्युनिटी थी वो थोड़ी सी एलिनेटेड फील कर रही थी, तो इन्होंने आके पहले हिंदुओं को ऑप्ट करना शुरू कर दिया, हिंदू एजुकेशन पे थोड़ा जोर लगा दिया और मुस्लिम को थोड़ा निग्लेक्ट कर दिया, बड़ा सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। तो बिल्कुल मैकाइवलियन स्टेट क्राफ्ट इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो हो गया ओरिएंटलिस्ट का काम, ठीक है। जब स्टेबल हो गए, अब ये एंग्लिसिस्ट बन जाएंगे, अब ये अपना कल्चर हमें देंगे। अब वो कैसे देंगे? तो ओरिएंटलिस्ट ने क्या बोला कि देखो यार, जो इंडिया का पास्ट है ना, वो बड़ा ग्लोरियस था। पास्ट ग्लोरियस क्यों था? क्योंकि इंडिया में इनिशियली आर्यंस आ गए थे। आर्यंस कौन है? Aryans is a group of those people who speak Indo-European languages, right? Indo-European languages. तो गोरे ब्रिटिश क्या बता रहे हैं कि यार जो इंडिया में आर्यंस आए थे, जो थोड़े फेयर कलर्ड लोग हैं हमारे जैसे, वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। साइड पे बड़ा बड़ा लिख लो, आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। ये थ्योरी दी थी मैक्स मूलर ने, एक जर्मन इंडियोलॉजिस्ट थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ये थ्योरी दी थी दैट आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। वो क्या बताते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो सेंट्रल एशिया में रहता था, और कुछ टाइम के बाद वो वहां से माइग्रेट हुए, कुछ लोग इंडिया की तरफ आ गए, कुछ पर्शिया की तरफ चले गए, आगे फिर यूरोप में चले गए। तो एक ही ग्रुप था, और फिर वो लैंग्वेज की अफिनिटीज दिखाते हैं। संस्कृत में तुम बोलते हो भ्रत्र और इंग्लिश में तुम बोलते हो ब्रदर, संस्कृत में तुम बोलते हो मात्र और इंग्लिश में तुम बोलते हो मदर। ऐसे तुम देखो फ्रेंच में, स्पेनिश में, सारी लैंग्वेज तुम्हें ना क्लोजली एफिनिटीज दिखेंगी, तो तुम्हें दिखेगा कि इनमें कुछ कॉमन रूट्स हैं, राइट। डॉटर, दुहित्र, ऐसे करके ना बहुत सारे वर्ड्स वो तुम्हें बताते हैं। फिर तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या बोला कि देखो, आर्यंस जब इंडिया आए, उन्होंने इंडिया में आके ग्रेट वैदिक सिविलाइजेशन बनानी शुरू की, लेकिन ना यहाँ के जो लोकल्स थे, फिर यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस थे, धीरे धीरे वो ग्रेट आर्यन सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, वो डीजनरेट कर गई और कितनी सारी बुराइयां आ गई। ओरिजिनल वैदिक रिलीजन में ना तो विमेन के साथ कुछ गड़बड़ थी, ना ही कोई कास्ट सिस्टम था, सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन फिर इस देश के कारण, यहाँ के लोकल सर्कमस्टांसेस के कारण, यहाँ के ट्रेडिशंस के कारण आर्यन सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन हो गया। और जब उसका डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ? अब इसमें कास्ट सिस्टम जैसी बुराइयां आ गई, इतनी डीजनरेशन हो गई, विमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, एंड कितना ही ज्यादा तुम लोग सुपरस्टिशियस हो गए और स्पिरिचुअलिटी में ही फंस के रह गए, मटेरियलिज्म के बारे में सोचा ही नहीं। हम साइंटिफिक हो गए, हमारी प्रोग्रेस हो गई, हमारी डेवलपमेंट हो गई, हम कहाँ से कहाँ निकल गए वेस्टर्न लोग, और तुम पिछड़ गए सारे के सारे। तो अब हुआ क्या कि जो ये डीजनरेशन हुई है, इस डीजनरेशन के कारण अब तुम बहुत बैकवर्ड हो गए हो। अब साथ के साथ यहीं पे रुडरार्ड किपलिंग का वो आइडिया भी आ गया, व्हाइट मैन बर्डन, कि क्योंकि तुम इतना पिछड़ गए और हम इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज, सिविलाइज, इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि अब तो डिवाइन प्रोविडेंशियल मिशन हो गया, भगवान ने ही ऐसा कुछ प्लान कर दिया बाय नेचर कि हम आए और तुम्हारे ऊपर हम लोग रूल करें। व्हाइट मैन बर्डन, कि हम ना शौक से नहीं आए, हमें तो एक ना काइंड ऑफ डिवाइन मिशन पे भेजा गया है कि जाओ और इन अनसिविलाइज्ड लोगों को थोड़ा सिविलाइज करके आओ, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर अब रूल करने आए हैं। अब जब हम रूल करने आए हैं तो तुम लोग इतने बैकवर्ड हो, इतने इलिटरेट हो, इतने तुम सुपरस्टिशियस हो,
और तुम लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है, तो अचानक ही आते ही हम तुम्हें डेमोक्रेटिक वे में थोड़ा रूल कर सकते हैं कि आओ जी इलेक्शन कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमें ना तुम्हारे ऊपर अथॉरिटेरियन वे में तानाशाह ढंग से रूल करना पड़ेगा। जब हम तुम्हारे ऊपर अथॉरिटेरियन वे में रूल करेंगे तब हम तुम्हारी मॉरल प्रोग्रेस में तुम्हें हेल्प करेंगे। जब धीरे धीरे तुम पढ़ लिख जाओगे, समझदार बन जाओगे, फिर धीरे धीरे हम तुम्हें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देने शुरू कर देंगे। ये है ओरिएंटलिज्म। केतन, बिफोर आई मूव फर्दर थोड़ा रिपब्लिक और उसके बारे में बताऊं, पहले एक बार आप उनसे पूछ लिया जाए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। परफेक्ट सर। डन? यस सर। चलो ओके, फिर अब तुम्हें थोड़ा सा मैकाइवली शुरू किया हो तो वो बता दो, फिर आगे चलते हैं। अब वो कहता है रिपब्लिक देश तो वो होते हैं, मैकाइवली बोलता है, जहां पे लोग अपना राजा खुद चुनते हैं। अब तुमने चुना हुआ राजा हटाना है, तो चैलेंज तो बहुत खतरनाक हो गया ना, चुने हुए राजे को हटाने वाला चैलेंज। तो यहाँ पे तुम्हें ना डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो अप्रोच होगी वो क्या होगी कि जैसे तुम चुने हुए राजा को हटाओगे, एक बार लोगों में गुस्सा आना है तो तुमने ना डंडा उठा लेना है और सबकी टांगे तुड़वा देनी है। जिसने तुम्हारे खिलाफ बोलना है, इतना खतरनाक रूप दिखाना अपना कि जनता का दिल एक बार तो कांप जाए कि यार ये क्या ही खतरनाक आदमी आ गया रूल करने इस टाइम पे। ठीक है, इतना मारना है कि सबके दिलों में डर बिठा देना। लेकिन ये मार पिटाई का काम बहुत थोड़े दिन के लिए करना है, ये नहीं कि बहुत लंबा खींच 2 साल चलता जाए, महीना 1.5-2 महीना 4 महीने में खत्म कर देना, सबको डरा डरू के दबा के बिठा देना है। अब जब सारे बैठ गए, अब 2 तरह से काम शुरू करना है। एक, जितने सिंबल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेट्स से उस देश में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, विधानसभाओं की बिल्डिंग है, उड़ा दो, खत्म कर दो। नहीं तो लोगों को ना बार बार उन बिल्डिंग को देख के याद आता जाएगा, यार हम ना अपने लोग चुनते होते थे, ये पता नहीं कौन आगे बैठ गया। तो हिस्ट्री वाइप कर दो, खत्म कर दो, पता ही ना लगे लोगों को, दोबारा अगली जनरेशन को तो पता ही ना हो कि ऐसी कोई चीज भी होती थी। एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया पूरा, उनको पढ़ाना नहीं डेमोक्रेसी क्या होती है, उनकी किताबों में लिखा जाएगा डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप, ऐसे उनको पढ़ा दो, सारा उनका कल्चर चेंज करना शुरू कर दो। और साथ में अब जो इस सिस्टम के साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएं, उनको रिवार्ड करना शुरू कर दो। जो तुम्हारे साथ लॉयल हो जाए उनको रिवार्ड करो, अच्छी जॉब्स दो, एजुकेशन में हेल्प करो, उनकी प्रमोशंस कर दो, उनको रिच क्लास में ले जाओ फटाफट से। अब जितने उस देश की जनता है वो सारी ने तुम्हारा ना वो खतरनाक वाला रूप देख लिया कि यार ये मारता बहुत बुरी तरह से है, तो मार तो वो खाना नहीं चाहते, बेटर वो क्या चाहेंगे कि यार इसको खुशी रखो, जिंदगी तो अच्छी चलती है, नौकरियां मिल जाती हैं, प्रमोशंस हो जाती हैं, पैसे मिल जाते हैं, बढ़िया लाइफ चलती है। किसी ने हाथ खड़ा किया, किसने वो नहीं पता चल रहा। सो अगर किसी ने हाथ खड़ा किया तो नीचे नाम लिख दो। तो रिपब्लिक वाले देश में तो तुम इस तरह से डिप्लोमेटिकली गेम खेलना, लोगों को सब बदल देना जाके, और उनको पता ही ना लगने देना कि पुराना था कैसा, ये कर दिया। अब आती है बात कैथलिक्स, जहाँ पे पादरी राज करता है धर्म के नाम पे, और वो तो शुरू से यही कहता है कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भगवान ने चुन के मुझे भेजा है, मैं इसलिए रूल करता हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है। तो उसके खिलाफ तो कोई चैलेंज करता ही नहीं, और धर्म तो बड़ी स्ट्रांग फोर्स होती है, धर्म के नाम पे तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ये बोलता है यार ये बड़ा खतरनाक चैलेंज आ गया हमारी लाइफ का, क्योंकि हम पादरी को हटाने जा रहे हैं जिसे लोग भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए बड़ा डिप्लोमेटिकली गेम प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे पता चलता है मशाइवली इज मशाइवली हिमसेल्फ, बड़ा ही खतरनाक आदमी है, दिमाग बहुत तेज है इसका। ये बोलता है अपने राजा को, जिसने भी ये करना है काम ना, जिसने मोनार्कीज को कंट्रोल कर लिया, रिपब्लिक्स को, अब वो कैथलिक्स को कंट्रोल करने जा रहा है। कहता कुछ नहीं करना, जाके पादरी को उड़ा दे, मार दे पादरी को। जब पादरी को मारेगा पब्लिकली मारना, चाहे सबके सामने एग्जीक्यूट करना। एक बार लोग चौंक जाएंगे, शायद शोर मचाएंगे, ये क्या किया आपने, हमारे पादरी को मार दिया। तो बस लोगों को ये बोलना, यार तुम्हें नहीं पता बिना भगवान की मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता। तो शायद आज भगवान चाहते थे कि ये मरे और मैं तुम्हारे ऊपर राज करूं, तो हो गया। तो अब अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा वो तो भगवान की मर्जी के खिलाफ बोलेगा। तो ये लोग चुपचाप बैठ जाएंगे क्योंकि ये तो मानते इस चीज को है। तो मोनार्कीज को डिफरेंट वे में, रिपब्लिक्स को डिफरेंट वे में, कैथलिक्स को डिफरेंट वे में, सबको कंट्रोल करने का तरीका मैकाइवली ने एक ही बुक में बता दिया। इसलिए जब तुम आईएएस बनो तो तुम लोगों ने एक काम जरूर करना है, ये किताब पढ़नी है, राइट, द प्रिंस, और दूसरी पढ़नी है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। इसने एक बात बताई हुई है, कहता एथिक्स, मोरालिटीज ये लोगों की होती हैं, ये देशों की या राजाओं की नहीं होती हैं।
राजा के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा होता है, उसको वो काम करना ही करना है जो उसके देश के हित में है, राइट। वो नहीं परवाह करेगा कि इससे किसी का अच्छा होता है कि बुरा होता है, देश का अच्छा होना चाहिए। चलो अब लिखो अगला, हमारा फर्स्ट हो गया खत्म, अब हम सेकंड पे आते हैं। दूसरी आइडियोलॉजी आफ्टर ओरिएंटलिज्म, गगन। वेटिकन सिटी जीती सी गगन, वेटिकन। So Orientalism is all done. Next is Anglicization. अंग्रेजी से Anglicization, ANGLICIZATION। केतन, इसमें ना एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन एम ऑफ द ब्रिटिश वाज टू मेक इंडिया बैकवर्ड एंड नॉट एजुकेट देम, ऐसा नहीं है। ये ना आयरनी ऑफ फैक्ट है कि ब्रिटेन इंडिया को अपने ढंग से, अच्छा चलो इसके लिए भी तुम यार, एक तो ना केतन सवाल ऐसा पूछता है इग्नोर नहीं किया जा सकता, और बताने चलो तो बहुत सारी बातें याद भी आती हैं। ओके केतन, एक ना नाम है, सब लोग सुन लेना, अकेला केतन नहीं, एक ना नाम है कि लॉर्ड मैकॉले, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अब वो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया क्या कहता है, एक स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज इट शैल बी द प्राउडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इट शैल बी द प्राउडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड व्हेन द इंडियंस विल आस्क अस फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट वी वैल्यू। कितना महान दिन होगा हमारे अंग्रेजों के लिए जिस दिन इंडिया के ये बैकवर्ड, बारबेरियन, अनसिविलाइज्ड लोग भी बोलेंगे हमें इंग्लैंड जैसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहिए, हमें उनके जैसा लीगल सिस्टम चाहिए, जुडिशियल सिस्टम चाहिए, हमें सब कुछ इंग्लैंड जैसा चाहिए। दैट विल बी द प्राउडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, राइट। तो वो ऐसा नहीं सोच के आए थे कि वो हमें बैकवर्ड कर जाएंगे, राइट। वो सोच के ये आए थे कि थोड़ा सा इसमें वो हमें मॉडर्नाइज भी करेंगे, बट उसको उनको शायद ना ये लॉजिक इतना अच्छे से समझ नहीं आया। द मोर वी बिकम अवेयर, द मोर वी बिकम अवेकन्ड, द मोर वी विल बिकम नेशनलिस्ट एंड डिमांड फ्रीडम। चलो एंग्लिसाइजेशन, इसमें जैसे ना ओरिएंटलिज्म में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम सबसे इंपॉर्टेंट था, वैसे लिखो द नेम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, the name of Lord Cornwallis stands, the name of Lord Cornwallis stands tallest in this context. ठीक है, in this context। अब साइड पे ना स्टार लगा के लिख दो, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। दूसरा मेन पॉइंट लिखो अब, दो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, दो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ये लाइन लिख लो फिर मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। दो ओरिएंटल despotism was condemned, Oriental despotism was condemned, but paternalism of the Raj was justified. Paternalism of Raj, ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश राज बोल रहा हूँ। Paternalism of Raj was justified. अब एंग्लिसाइजेशन वाले क्या बोलना शुरू करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सब्सिक्वेंट जितने भी आएंगे
वो कहते हैं देखो ऐसा है कि इंडिया में ना ओरिएंटल डेस्पोटिज्म थी, तुम्हारे देश में शुरू से ही ना डेमोक्रेसी थी नहीं, बहुत पहले वैदिक बुद्धिक एज में थोड़ी बहुत थी, फिर जितने राजा आए सारे तानाशाह थे, सब तुम लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, हेरिडिटरी मोनार्कीज चलती आ रही हैं, बाप के बाद बेटा अपने आप गद्दी पे बैठता रहता है, तो तुम्हारे देश में डेमोक्रेसी का कोई ट्रेडिशन या कोई ट्रेंड ही नहीं है भाई, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तुम्हारी यहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं है, तो हम तुम लोगों को डेमोक्रेसी कहाँ से देंगे। अभी के लिए समझो क्या कि पैटर्नलिज्म ऑफ राज होने जा रही है, और वो क्या है, बेनेवोलेंट पैटर्नलिज्म ऑफ राज। हम आए हैं तुम्हें सुधारने, तुम्हें अच्छा बनाने, तुम्हें मॉडर्न आइडियाज के साथ फेमिलियर कराने, तुम्हारा कल्याण करने, बेनेवोलेंस मींस राज करने और कल्याण करने, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा करने आए हैं। बेनेवोलेंस है किसकी, ब्रिटिश राज की। कैसे है, थ्रू पैटर्नलिज्म। जैसे माँ बाप होते हैं ना तुम्हारे, माँ बाप तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए तुम्हें कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी मारते हैं, पनिशमेंट्स देते हैं, ठीक है, तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ऐसे ही अब ब्रिटिश राज तुम्हारे साथ करेगा। हम तुम्हारे माई बाप, इसीलिए देखा नहीं हिंदुस्तानी क्या बोलते थे, माई बाप हमारे माई बाप आप हो, तो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा अच्छा ही करेंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे देश में ओरिएंटल डिस्पोटिज्म थी, तो उसको खत्म करने के लिए तुम लोगों को पहले उस लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए हमें टाइम चाहिए, इसलिए कुछ टाइम के लिए हम भी डिस्पोटिक वे में ही रूल करेंगे, तानाशाह बन के ही, ताकि तुम्हारी जो कहते हैं ना, जैसे ना यूपीएससी की तैयारी में एक लाइन आती है, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस यू हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डी लर्निंग। जितना तुमने स्कूल टाइम में पढ़ा था उसको भूलना पड़ेगा, डी लर्निंग करके ही तुम फ्रेश लर्निंग कर पाओगे, तभी तुम नए क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे, अदरवाइज तुम्हें ना पुरानी बातें याद आती रहेंगी, और वो पता नहीं कोई ठीक होती है कोई नहीं होती। तो ये बोलेगी पहले हम तुम्हारी ना वो पुरानी कमियां पूरी करेंगे, दूर करेंगे, और फिर तुम्हें हम नए तरीकों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगला लास्ट मेन पॉइंट, इट वाज रियलाइज्ड दैट imperial authoritarianism could flourish along with local elites and therefore zamindari system was introduced. अब देखो इस लाइन का मतलब समझो, it was realized that imperial authoritarianism could flourish along with local elites and therefore zamindari system was introduced. तो इसका मतलब क्या है, मैं एक अंग्रेज हूं जो इंडिया आया है, तुम सब लोग पहनते हो धोती और ऊपर कुछ भी नहीं पहनते और नीचे नंगे पांव घूमते हो, और मैं आया हूं जिसने पहनी हुई है जीन्स टी शर्ट्स और शायद नाइकी के शूज या एडिडास के शूज, और तुम सारे सुबह उठते हो और दूध पीते हो, और मैं पीता हूँ कॉफी, राइट, सुबह उठ के बैटी पीता हूँ यहाँ, है ना, और फिर तुम सब करते हो दातुन, मैं करता हूँ पेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारे कल्चर को अपना कल्चर बनाओ, हमारे कल्चर को सुपीरियर मानो, तो सिर्फ मेरे अकेले के करने से कैसे होगा, तुम्हें मुझे लोकल एलीट सेगमेंट बनाना पड़ेगा जो मेरे जैसा बने, ताकि तुम्हें लगे यार कि ये अगर अंग्रेजों जैसे बन गए तो हम भी बन जाते हैं। तो हमने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो गांव का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी ही जमींदार होगा, बड़ा जमींदार लैंडलॉर्ड, वो ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करेगा। धीरे धीरे ये लोग होंगे जो पतलून पहननी शुरू करेंगे, ये लोग होंगे जो चाय पीनी शुरू करेंगे। इंडियंस कहाँ चाय पीते थे, इंडियंस ड्रामे वाला क्या करते होते थे, गोरा कहता चाय पी लो, कहते नहीं काले हो जाएंगे, गोरा अपनी शक्ल देता था शीशे में, यार मैं तो हुआ नहीं इतने सालों से चाय पीते पीते, ये कैसे हो गए। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे लोकल एलीट सेगमेंट नया खड़ा कर दिया, जो रॉयल क्लास थी उसको भी अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो भी अंग्रेजों की तरह बोलें, अंग्रेजों की तरह दिखें, अंग्रेजों की तरह खाए पिए, सब कुछ अंग्रेजों जैसा होना शुरू हो जाए। ये हो गई एंग्लिकलाइजेशन। अब आती है लास्ट तीसरी आइडियोलॉजी, वो लिखो आप लिबरलिज्म।
थर्ड आइडियोलॉजी इज दैट ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में तीन मेन ग्रुप्स खड़े हो गए, तीन मेन ग्रुप्स, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद आज अगला जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो जहां तक हमने आज तक पढ़ा है उसको भी लिंक करेगा, और जहां तक हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ना है उसको भी लिंक करेगा। लेकिन इसके ऊपर कोई भी आंसर लिखना उसी दिन पॉसिबल होगा जब हम एक बार पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जैसे ही मैं ये तीन आइडिया समझा दूंगा, फिर मैं एक बार आपसे डाउट्स पूछ लूंगा, and then I will explain the next topic which will take me about 15-20 minutes, but फिर उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये दो टॉपिक्स अपने आप में एक होलसम टॉपिक बन जाते हैं जिसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आज आपने एनसीईआरटी 8th और 12th वाली में से ये सारा पढ़ना और अपने शीट्स में से पढ़ना है, और मुझे जहां तक उम्मीद है कुछ जेन्युइन डाउट्स उठेंगे आज के लेक्चर के बाद, तो आपने फिर मुझे टेक्स्ट करके वो डाउट्स पूछने हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉल मैं अपने आप कर दूंगा। अब जो तीन उठे, एक उठे फ्री ट्रेडर्स, इसको मैं काफी आगे तक कनेक्ट करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना भी है, पहले लिखवाऊंगा फिर एक्सप्लेन करते हुए काफी आगे लेके जाऊंगा। दूसरे हैं फ्री ट्रेडर्स, यूटिलिटेरियंस, और तीसरे हैं evangelicals, राइट? फ्री ट्रेडर्स, utilitarians and evangelicals, EVANGELICALS। तो पहले फ्री ट्रेडर्स, पहले मैं सबके नीचे ना एक एक दो पॉइंट्स लिखवाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। फ्री ट्रेडर्स के नीचे लिखो दे लॉबीड, इन्होंने लॉबी बना ली, दे लॉबीड टू गेट कंपनीज मोनोपोली abolished। Companies monopoly abolished। दूसरा लिखो यूटिलिटेरियंस के नीचे, they believed in the idea of, रवनीत रिपीट कर देता हूं बेटा, they lobbied, LOBBIED, फ्री ट्रेडर्स के बारे में, they lobbied to get companies monopoly abolished। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड दिया हुआ था ना, 1600 से चल रहा था जो, उसको अबॉलिश करवाने के लिए एफर्ट्स करते हैं 200 साल के बाद। they lobbied to get companies monopoly abolished। फिर लिखो यूटिलिटेरियंस के नीचे, they believed in the idea of greatest happiness of the greatest number। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जिस चीज का हो वो काम करने के लिए। राइट, नेक्स्ट अगला लिखो, इसी में दूसरा पॉइंट, दे बिलीव दैट गुड लेजिस्लेशंस, अच्छे कानून बनाए जाएं, गुड लेजिस्लेशंस एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, गुड लेजिस्लेशंस एंड efficient administration are effective agents of change, are effective agents of change। फिर स्टार लगा के लिखो, accordingly modern education and modern legal systems were started to be introduced in India, for example in 1833
law commission was appointed under Lord Macaulay. अंडर लॉर्ड मैकॉले। फिर इस लॉ कमीशन ने आईपीसी तैयार किया था, विच ड्राफ्टेड इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। अब लास्ट आती है बात एवेंजलिकल्स की, उसके नीचे एक पॉइंट लिखो। फिर आज तुम्हें एक यूनिक एक्सरसाइज भी करवानी है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एक्सपेरिमेंट फॉर दिस प्रिपरेशन, जो हमें करना होता है, इसके बाद बस प्रैक्टिस होती है। एवेंजिकल्स में लिखो, सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट नाम लिख लो, विलियम विल्बर फोर्स। मैंने नाम की स्पेलिंग लिख दी यहाँ पे, विलियम विल्बर फोर्स, WIL विल, BER बर, FORCE विलियम विल्बर फोर्स, और दूसरा नाम है चार्ल्स ग्रांट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो इवेंजलिकल लॉबी के साथ जुड़े हुए हैं, विलियम विल्बर फोर्स एंड चार्ल्स ग्रांट। ये क्या बोलते हैं? दे फेवर्ड promotion of Christianity in India, for progress। अब तुम्हारे लिए यूनिक एक्सपेरिमेंट जो आज है वो ध्यान से सुनो। 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 मिनट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लास में भी ये एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले इसको जो मैंने लिखवाया ना आज, इंपीरियल आइडियोलॉजी, इसको क्विकली रीड कर लो। रीड करके अपने माइंड से आज एक क्वेश्चन फ्रेम करो कि तुम्हें क्या लगता है इस तरह की आइडियोलॉजी पे अगर यूपीएससी मेंस में कोई क्वेश्चन आए तो वो कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यू आर नॉट लिमिटेड इन दिस, तुम फ्यूचरिस्टिक बनाओ, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बनाओ, पास्ट कॉन्टेक्स्ट में बनाओ, कोई भी एक क्वेश्चन बनाओ। उस क्वेश्चन का तुम क्या आंसर लिखोगे, वो सिर्फ पॉइंट्स लिखो अपने पास। मेरे हिसाब से इसके लिए 10 मिनट काफी है। सो हियर यू स्टार्ट, एक पहले पढ़ के क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बना के फिर तुम उसके बारे में पॉइंट्स लिखो, फिर मैं तुम्हारे से आगे डिस्कशन करूंगा।
हाँ जी, कोई लिख पाया? कितने हाथ खड़ा किया है? प्लीज राइट योर नेम, whosoever has raised the hand. कशिश, ओके, बोलो कशिश। Sir, maybe मेरा शायद सिंपल होगा क्वेश्चन, हाउ ईच टाइप ऑफ लिबरलिज्म इन्फ्लुएंस ईच अदर इन सम वे, डिस्कस। लिबरलिज्म का मिशन था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, फ्री ट्रेडर्स का मिशन था टू मोनोपोली एंड सेल देयर गुड्स इन इंडिया, एंड इवेंजलिस्ट का मिशन था टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। टू सम इट अप, modernization of India would provide trade opportunities to free traders, and it can be done through good legislative administration and Christianization of India, and thus their goals align with each other. ठीक है, all right, good. और कोई? गुणराज, ओके। हाँ जी गुणराज बोलो। सर मैंने 2-3 बनाए थे। एक था कि डिस्कस implication of the free traders getting being successful with the lobby early in their quest. फिर दूसरा मैंने कहा था anglicization and evangelism go hand in hand, discuss each other in the absence of one another. और तीसरा मैंने कहा था कि consider a hypothetical situation where India was first conquered by Anglicists, and then later the British historians, British Orientalists discovered the Indian history to be more fruitful. Do you think the roles could have been reversed, and could India have been able to colonize Britain? And तो इसके आंसर में मतलब बड़ा सही है, ये बड़ा सही है। इसके आंसर में मतलब मैंने सोचा था कि एक तो पहले हम बताएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मैकियावेली के थ्योरीज को सपोर्ट करते हुए बता देंगे, एंड अभी दूसरा सोचा था कि इंडिया हैव कॉन्कर्ड ब्रिटेन था। क्या बात है यार, वेरी इमेजिनेटिव, दो नॉट रिक्वायर्ड बट वेरी इमेजिनेटिव। ठीक है, गुड। चलो मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। मैं जो तुम्हें आज एक्सरसाइज दी थी इसका रिजल्ट नहीं अभी निकाल रहा हूँ, लेट मी नो अबाउट अदर्स, ठीक है, फिर उसके बाद बताऊंगा। अब पहले ना फ्री ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। फ्री ट्रेडर्स के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली है कि इंडिया से सामान खरीदना भी इन्होंने है या इंडिया में सामान बेचना भी इन्होंने ही है। ये कब शुरू हुआ है? 1600 में। 1609 में तो कंपनी को इनडेफिनेट टाइम के लिए मोनोपोली जेम्स वन ने दे दी हुई थी। अब 1750 में 150 साल के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, अब जो वहां पर कैपिटलिस्ट क्लास खड़ी हुई, वो कैपिटलिस्ट क्लास सबसे पहले तो ये पूछती है कि अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से या ईस्टर्न कंट्री से फिनिश गुड्स ही लाती रहेगी तो फिर हमारे नए गुड्स की मार्केट डेवलप कैसे होगी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीकों को चेंज करो, ये अब इंडिया से या बाकी देशों से फिनिश गुड्स ना लाया करे, रेदर वो गुड्स हम बना देंगे। अदरवाइज क्या होता है, ये इंडिया से सामान लाते रहते हैं और फिर हमारा तो सामान जो नया नया उसकी तो मार्केट ही डेवलप नहीं हो रही है। तो इंग्लैंड की सरकार ने इंडिया से जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता था टू इंग्लैंड, उस पे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए ताकि पहले लोकल मार्केट में इन लोगों के जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट डेवलप हो जाए, इनका शेयर बढ़ जाए। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद ये कैपिटलिस्ट क्लास और स्ट्रांग हो गई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे फास्ट पेस चला गया और ये इन्फ्लुएंशियल लोग बन गए। जब ये थोड़े इन्फ्लुएंशियल बने तो मैंने बोला यार कंपनी को बोलो इंडिया से सिर्फ अब रॉ मटेरियल चाहिए हमें, एंड दैट इज इट। इंडिया से रॉ मटेरियल ला दिया करे, गुड्स हम बना देंगे, इंडिया बेच दिया करे। तो कंपनी को ये भी मानना पड़ा क्योंकि अब ये लोग काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं। मीनवाइल वंस द कैपिटलिस्ट क्लास बिकेम इन्फ्लुएंशियल, वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गए और पार्लियामेंट के मेंबर्स बनने शुरू हो गए। अब जब ये पार्लियामेंट के मेंबर्स बने तो इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली देने का लॉजिक ही क्या है, इसको बंद करो,
इन्होंने गन डाला हुआ है, इंडिया से सस्ता सामान खरीदते हैं और इंग्लैंड को लाके महंगा बेच देते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल ही है, तो हम जाके इंडिया से डायरेक्ट ही माल उठा लेंगे, वो और सस्ता पड़ेगा। अब इस चक्कर में एक चीज देखना, वो कंपनी जिसको 1600 में मोनोपोली देके इंडिया भेजा था, वो 1773 तक बिना रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड कर रही थी और मोनोपोली को एंजॉय कर रही थी। अब क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लॉबी जो है ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में। अभी ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगवाने के लिए इन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, इसने बोला कि एक 20 साल और कंपनी के पास मोनोपोली है, वो इंडिया में ट्रेड कर ले मोनोपोलिस्टिक, फिर हम देखते हैं क्या करना है, राइट। अब जब इसके 20 साल पूरे हुए तो 1793 में चार्टर एक्ट 1 पास हुआ। फर्स्ट चार्टर एक्ट में इन्होंने बोला कंपनी को अभी 20 साल और मोनोपोली का ट्रेड करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेने दो, राइट, क्योंकि अभी भी कैपिटलिस्ट जो है वो बड़े स्ट्रांग नहीं है। लेकिन 1800 ऑनवर्ड्स तो कैपिटलिस्ट एकदम से काफी स्ट्रांग होने शुरू हो गए। अब जब इसके 20 इयर्स पूरे हुए तो 1813 का चार्टर एक्ट सेकंड पास हुआ। इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हाफ मोनोपोली खत्म करवा दी, ठीक है। अब कंपनी इंडिया में ज्यादा मोनोपोली रखती थी, इसके पास टी ट्रेड की मोनोपोली बची थी बस, या ट्रेड इन चाइना की मोनोपोली थी। इंडिया में तो इसकी मोनोपोली ऑलमोस्ट खत्म ही करवा दी, सिर्फ टी ट्रेड की मोनोपोली बची। फिर इसके 20 साल पूरे हुए तो 1833 में चार्टर एक्ट 3 पास हुआ। अब जब चार्टर एक्ट 3 पास हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी मोनोपोली खत्म करवा दी गई, राइट। ये फ्री ट्रेडर्स लॉबी कर रही है, पहले कंपनी पे 20 साल का लीज लगवाया, फिर 20 साल का, फिर आधी मोनोपोली खत्म करा दी, अब सारी मोनोपोली खत्म करा दी। जब 1833 के 20 साल हुए तो 1853 में चार्टर एक्ट 4 पास हुआ। इसने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 इयर्स की एक्सटेंशन देने से ही मना कर दिया। ये लिख दिया टिल द प्लेजर ऑफ द क्राउन, जब तक क्राउन चाहता है। क्राउन क्या चाहता है? जो पार्लियामेंट चाहता है। पार्लियामेंट क्या चाहता है? जो कैपिटलिस्ट चाहते हैं। टिल द प्लेजर ऑफ द क्राउन, जब तक क्राउन चाहता है तब तक कंपनी इंडिया में ट्रेड कर ले, जिस दिन क्राउन ने मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर देंगे। अब लॉजिक क्या है कि 1853 में ही कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, और पहले ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती थी कि वो इंडिया के सारे ऑफिसर्स को खुद चुन के भेजेंगे। 1853 के एक्ट में जो सिविल सर्विसेज थी उसके लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी से सारी पावर्स छीननी शुरू कर दी 1853 के एक्ट ने। अब 1853 में तो किसी को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं पता था कि इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाई चांस इंडिया में 1857 में रिवोल्ट हुआ। अब इंग्लैंड की सरकार तो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने का मन बना चुकी है ना, तभी 1853 में उसको 20 इयर्स की लीज नहीं दी। 4 साल बाद रिवोल्ट हो गया। अब रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटेन की सरकार को एक्सक्यूज मिल गया कि यार कंपनी ने तो इंडिया में बहुत गन डाला हुआ है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। अब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबॉलिश कर दिया। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश, और इंग्लैंड ने डायरेक्ट इंडिया पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। दैट मींस रिवोल्ट का रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ये रिवोल्ट का रिजल्ट नहीं है, ये तो वैसे ही हो जाना था। हमें क्या कहना है? रिवोल्ट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर एंड ऑफ कंपनी रूल। अगर रिवोल्ट ना भी होता तब भी कंपनी का रूल खत्म हो जाता, शायद टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता, लेकिन अब क्या हुआ? फटाफट से एक झटके में एक ही साल में गेम प्लान कर दी गई और कंपनी को बंद कर दिया और सारी पावर ब्रिटेन के क्राउन को मिल गई। तो ये है फ्री लॉबी ट्रेडर्स की या फ्री ट्रेडर्स की लॉबी का काम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को इसके बारे में पूछना पहले बताओ, फिर मैं तुम्हें दूसरों के बारे में समझा दूं। दिस इज क्लियर? ऑलराइट, फिर बात करते हैं इवेंजलिकल्स की।
इवेंजलिकल्स बोलते हैं भाई जब तुम्हें पता लग ही गया कि इंडिया में इतनी डिग्रेडेशन हो चुकी है और हमारा कल्चर सुपीरियर है, हमारा रिलीजन सुपीरियर है, हमारी लैंग्वेज सुपीरियर है, तो इंडिया में थोड़ी क्रिश्चियनिटी भी प्रमोट कर देते हैं। अब क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए जो चार्टर एक्ट थर्ड था, सेकंड 1813 वाला, 1813 के चार्टर एक्ट ने पहली बार बोला था कि इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रीच करने की फ्रीडम दी जाएगी। राइट, इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को रिलीजन प्रीच करने की, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने की परमिशन दी जाएगी। तो इसके बाद इंडिया में ऑफिशियली क्रिश्चियनिटी प्रमोशन स्टार्ट कर दी गई 1813 में। और साथ में जो यूटिलिटेरियंस थे वो क्या कह रहे थे कि कुछ यूटिलिटी के काम करो, तो इसी एक्ट ने बोला कि इंडिया में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस एनुअली स्पेंड किए जाएंगे पर एनम फॉर प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। सो अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में यूटिलिटी के काम भी करेगी, मॉडर्न एजुकेशन लेके आएगी और लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी। लॉ मेंबर बना दिया गया था लॉर्ड मैकॉले को, और फिर आगे जाकर वो होगा। तो इस तरह यूटिलिटेरियनिज्म के आइडियाज आ गए और फ्री ट्रेडर्स के आइडियाज आ गए और इवेंजलिकल्स के आइडियाज आ गए। अब एक और चीज, जो अगली चीज इंपॉर्टेंट हुई वो क्या थी कि फ्री ट्रेडर्स चाहते हैं कि इंडिया में ट्रेड बढ़े, इवेंजलिकल्स चाहते हैं कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो, और यूटिलिटेरियंस चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस जैसे इंस्टीट्यूशंस बने। अब इन तीनों में एक यूनिटी हो गई, फ्री ट्रेडर्स में, इवेंजलिकल्स में, यूटिलिटेरियन में। यूटिलिटेरियन कहते हैं मॉडर्न आइडियाज इंट्रोड्यूस करो, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, राइट। इवेंजलिकल्स बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में भी आएगी ना तभी वो मॉडर्न होगी। इंग्लिश पढ़ाओगे तो भाई वो अपने आप बाइबल भी पढ़ लेंगे, तो क्रिश्चियनिटी भी प्रमोट हो जाएगी। फ्री ट्रेडर्स बोलते हैं इंग्लिश पढ़ेंगे, मॉडर्न आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो मशीन मेड गुड्स खरीदने शुरू करेंगे, मॉडर्न इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो तीनों में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए ये तीनों लॉबीज इकट्ठी काम करती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे प्लान्स को चेंज करवा देती हैं, जिसके कारण फ्री ट्रेडर्स के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पे थ्रेट आ जाती है। इवेंजलिकल्स के कारण इंडिया के लोग ही परेशान हो गए कि ये क्या ही करी जा रहे हैं हमारे देश में, है ना। तो इसके अगेंस्ट भी रिवोल्ट करने की बात शुरू होगी। तो वो रिवोल्ट किसके अगेंस्ट होगा, क्योंकि रूल तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, तो टारगेट बनेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्री ट्रेडर खुश हो गए कि हम तो चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी टारगेट बने। और यूटिलिटेरियंस जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म करा रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, सती बैन करा रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छे काम करा रहे हैं। बट इंडिया की सोसाइटी है जो वो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वो भी इस चीज से अनॉयड हो गई। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए ये सारी बन गई बैकग्राउंड। अब किसी को कुछ पूछना है तो पहले डिस्कस करो, फिर जो मैंने बोला था मुझे एक आज नई चीज भी समझानी है आप लोगों को, जिसका पास्ट और फ्यूचर दोनों के साथ लिंकिंग है, वो कराएं, फिर आज का टॉपिक खत्म करें। Anyone who wanna ask anything? Otherwise, I would like to ask somebody something. आप तब तक टाइप करो अगर पूछना है। हाँ जी सविता मैम, स्विच ऑन द माइक। यस सर। Was I right कि आज नया टॉपिक होगा, इसका बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाएगा? हाँ सर, अब थोड़ा यस सर। अभी मैं थोड़ा रेफरेंसेस जो आपने बताया उसको कोरिलेट करके मुझे आज समझ तो आ गए सारे टॉपिक्स, लाइक क्या क्या चल रहा है, कैसे है। सो आप इसी आज का तो मुझे कंटिन्यू करना और आप दूसरी क्लास भी करना, अदरवाइज आपको मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ जी, बट सर जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा लैकिंग है, वो तो फिर आप एक बार जब वो पिछले 4-5 लेक्चर्स देखोगे तभी क्लियर होगा, या फिर जब मॉडर्न इंडिया दोबारा होगी तब करोगे आप। ठीक है सर। हाँ जी, ऑलराइट, ओके। योगी जी क्या कह रहे हैं, सर 1 लाख रुपए फॉर एजुकेशन से क्या ही होगा। हेलो मेरे पुत्र योगी, आजा, आप कैसे भी बात करें। योगी बोल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर ये आपने लिखवाया क्या था, इसमें 1 लाख रुपीज आपने एजुकेशन के लिए अलॉट करे हैं। हाँ, तो ये मतलब कौन सी एजुकेशन के लिए अलॉट किए गए थे? मॉडर्न एजुकेशन के लिए। ओके, क्या ही होगा 1 लाख रुपए से ना। हाँ भाई।
वही अच्छा, सोच अब रहा कौन से साल की बात हो रही है? तो इसमें 1833 की सर। 1813 की, 1813 की। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, जो 1813 में 1 लाख रुपया है, बड़ा कंजर्वेटिव वे में बताऊंगा, सिर्फ कंजर्वेटिव वे में 1823 में वो 2 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, 33 में वो 4 लाख होने चाहिए, 43 में वो 8 लाख होने चाहिए, 53 में वो 16 लाख, 63 में 32 लाख, 73 में 64 लाख, 83 में 128 लाख, 93 में 256 लाख। अभी तो हम कहाँ पहुंचे हैं? 1893 में। नाउ गोइंग बाय दिस कैलकुलेशन, तुम 2020 में समझ सकते हो ये कितने पैसे हो गए होंगे? समझ गया सर, समझ गया। काफी है? हाँ काफी है। ठीक है। ऑलराइट पल्लवी, अच्छा पहले विश्वेंद्र त्यागी, मैं कॉलेज मिनट, बेटा वो ना मैंने आज रेफर नहीं किया, मैं कॉलेज मिनट 1835 में आया था जब फाइनली इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, वो अलग से लिखवाएंगे। राइट, इफ यू आर हैप्पी गुड टाइप ओके, इफ यू वांट मी टू इलैबोरेट और से एनीथिंग मोर आस्क मी। और पल्लवी लिखती है imperial ideology of British was not for Indians to become civilized, but for them it is to destroy glorious past of India. Discuss. Oh, very good, very good. थोड़ा सा इसको ट्वीक करेंगे, अदरवाइज गुड क्वेश्चन। इसका आंसर लिख के भी भेज सकते हो आप मेरे को, ठीक है? ऑल राइट, चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। अब इसकी एक सेकंड रुको, देखो बस बिल थैंक यू। स्टूडेंट मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। धोना है। Sorry, there was some delivery grocery items। अच्छा जी, तो हेडिंग लिखो ब्रिटिश, हेडिंग होगी हमारी ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स। नेटिव स्टेट्स क्या है? जो भारत के डिफरेंट राजा लोग थे, भारत के छोटे छोटे या बड़े बड़े रियासतें, उनके राजाओं के प्रति ब्रिटिश पॉलिसी। पहले मैं सारी पॉलिसीज के नाम लिखता हूं, फिर इसको तुम नाम लिख के आज छोड़ देना, जो मैं समझाऊंगा वो सिर्फ सुनना, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात होगी।
क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी 1740 to 64 सॉरी 65 1740 to 65। दूसरी है रिंग फेंस और बफर स्टेट्स 1765 to 1818 1765 to 1818। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स, पहली है क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी 1740 to 65 और दूसरी है रिंग फेंस और बफर स्टेट 1765 to 1818। तीसरी है सबऑर्डिनेट आइसोलेशन है 1818 to 1857 1818 to 1857। चौथी है सबऑर्डिनेट यूनियन है 1858 to 1935 1858 to 1935। और लास्ट है इक्वल फेडरेशन 1935 to 47। तो ये 5 ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स नेटिव या प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया है। पहली है क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी जिसका टाइम है 1740 से लेकर फ्रॉम 1740 to 1765। दूसरी है रिंग फेंस और बफर स्टेट्स 1765 से लेकर 1818 तक। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 1818 से लेकर 1857। फिर आती है सबऑर्डिनेट यूनियन जिसका टाइम है 1858 से 1935 और लास्ट इक्वल फेडरेशन 1935 to 47। ठीक है, अब सिर्फ लिखनी थी, अब सुनना, ध्यान से सुनना, लिखने में मत जाना, वो मैं बाद में किसी दिन लिखवाना है मैंने। क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी का मतलब ये था कि पूरे यूरोपियन कंपटीशन को एलिमिनेट करना है। बाहर से जितने लोग आए हैं हमारी तरह ट्रेड करने, उनको तो खत्म कर देंगे, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन कंपटीशन या यूरोपियन कंपटीशन, और इंडिया में अपने लिए पॉलिटिकल प्लेस क्रिएट करना। क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी तरह से इंडिया में हम लोग थोड़े एक्टिवेट हो जाएं और हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए, ताकि जो इंडियन नवाब हैं, जो इंडियन ऑफिसर्स हैं, हम एटलीस्ट उनके बराबर खड़े हो जाएं और फिर हम कुछ पॉलिसीज अपने लिए खुद भी बना सकें, हर बार इंडियन से पूछ के पॉलिसी ना बनानी पड़े। तो क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी में 1740 to 65 के बीच में एक तो इन्होंने क्या जीता इंडिया में, इन्होंने जीती 3 कर्नाटिक वॉर्स। लास्ट बड़ा कॉम्पिटिटर यूरोपियन था फ्रेंच, उसको खत्म कर दिया 3 कर्नाटिक वॉर्स लड़के, और इसी के बीच में प्लासी और बक्सर जीत के इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए और इंडिया में ऑफिशियल पावर अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। तो इंडिया में इनको क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी दिख गई। फिर अवध को इन्होंने बफर स्टेट बना दिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी राइट्स लिए, अवध के आसपास अपनी रिंग फेंस बना दी, और यहाँ से शुरू होगी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस और बफर स्टेट्स कि जो हमारे कंट्रोल में है उसके आगे एक स्टेट को हम अपने पास रखेंगे इनडायरेक्ट कंट्रोल में, ताकि अगर कोई लड़ाई झगड़े का काम हो तो उसको हम संभाल सकें। ठीक है, तो रिंग फेंस बफर स्टेट्स, इस टाइम पे इन्होंने सबसे पहले अवध को इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, फिर मैसूर को हरा दिया, हैदराबाद के साथ सब्सिडरी अलायंसेस कर दी और मराठाओं को भी हरा दिया और पैरामाउंट पावर बन गए। जब ये करते हैं साथ साथ में सब्सिडरी अलायंस करनी शुरू कर दी सबके साथ, और सबको कंपेल कर दिया कि वो ब्रिटिश आर्मी रखें अपने पास। जब सारे इंडियंस ने ब्रिटिश आर्मी रखी तो वो अंग्रेजों के सबऑर्डिनेट हो गए, राइट, सबके ऊपर तो ब्रिटिश आर्मी लगा दी, सबऑर्डिनेट अपने अधीन कर दिया, और सबके साथ ब्रिटिश रेजिडेंट्स लगा के उनको एक दूसरे से आइसोलेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, सबके पास इंडियन
आर्मी नहीं होगी, ब्रिटिश आर्मी होगी और सबके पास ब्रिटिश रेजिडेंट्स होंगे। मींस वो एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। मेरे ना यहाँ पे लाइट जा चुकी है, हो सकता है बीच में किसी टाइम कुछ बंद हो जाए, तो इसको मैं थोड़ा फास्ट करके खत्म कर देता हूँ। ब्लर होना शुरू हो गया लाइट जाने से। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, फिर जब रिवोल्ट ऑफ एट कल कराऊंगा, खत्म हो जाएगा। एकदम से ना बैटरी नहीं थी, मेरे को पता नहीं था, मैंने चार्जिंग नहीं की हुई थी। कल कराता हूँ इसको, ठीक है। कोई डाउट हुए तो आप प्लीज, रवनीत कल ही बताऊंगा बेटा, एकदम बंद होने वाला है ये, तो कल करा दूंगा यहाँ से दोबारा शुरू और स्टार्टिंग से कराऊंगा। अभी के लिए बाय। किसी को कुछ पूछना होगा तो मेरे को, चलो रुक जाओ, लाइट आ गई लाइट आ गई, शुक्र है आ गई। हाँ रवनीत, तुमने पूछा था बफर स्टेट, बेटा वो याद है तुम्हें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये ब्रिटिश ने जीत के अवध के आसपास अपनी आर्मी लगाई थी। तो अवध क्या हो गया? बफर स्टेट। ब्रिटिश ने इसको डायरेक्टली जीता नहीं है, लेकिन अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया, तो ये बफर हो गया बिटवीन द ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये होगी बफर स्टेट, ठीक है। और जो यहाँ पे आर्मी लग गई वो बन गई रिंग फेंस। अब रिंग फेंस के बाद सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मैंने बता दिया था। अब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ना, तो इन्हीं राजाओं की जो इंडियन आर्मी सो कॉल्ड थी, वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी हुई थी ना बिकॉज ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस, तो वो आर्मी यूज करके इन्होंने रिवोल्ट को इजिली क्रश कर दिया। अब अंग्रेजों को समझ आया कि राजाओं को अलग रखने की बजाय उनका एक ग्रुप बना लिया जाए। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट यूनियन। राजाओं को एक ग्रुप बना दिया गया, रेजिडेंट्स खत्म कर दिए गए, उनको आपस में बात करने दी गई, लेकिन रखा अपने कंट्रोल में ही। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट यूनियन। और लास्ट है फिर इक्वल फेडरेशन। इक्वल फेडरेशन क्या थी? इक्वल फेडरेशन थी कि अगर राजे चाहें तो हम ब्रिटिश इंडिया, जो इंडिया हम जीत चुके हैं, और नेटिव स्टेट्स जो राजे अभी भी राज कर रहे हैं, इनको मर्ज कर देते हैं। राइट, ये कहा था पर अंग्रेजों ने किया नहीं था। अगर कर देते तो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। गगन अभी समझाता हूँ। सबऑर्डिनेट यूनियन में इन्होंने क्या किया, रखा इंडियन राजाओं को अपने कंट्रोल में ही, लेकिन उनकी यूनियन करवा दी, क्योंकि इनको समझ आ गई कि राजे इकट्ठे होकर हमारे दोस्त बन सकते हैं, तो सबऑर्डिनेट यूनियन करा दी। आइसोलेशन में उनके साथ रेजिडेंट थे, वो आपस में बात नहीं करते थे, अब सारे इकट्ठे बैठ के मीटिंग करेंगे, लेकिन किसके साथ? ब्रिटिश वाइसरॉय के साथ, ठीक है। इक्वल फेडरेशन में इन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश इंडिया और नेटिव स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं, एक इंडियन फेडरेशन बना देते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन नाम रखा गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। ये प्रपोज किया था बना देते हैं, लेकिन बनाया नहीं था। और ये क्यों नहीं बनाया था, ये डिटेल में हमने डिस्कस करना है जब हम 1935 का एक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 5 फिलॉसफीज थी: क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी, रिंग फेंस और बफर स्टेट, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, सबऑर्डिनेट यूनियन एंड इक्वल फेडरेशन। अब तुम करोगे क्या, अपनी बुक में हमने ये दिया हुआ है, तुम एक बार वहां पढ़ लोगे, कोई डाउट हुए तो मेरे से डिस्कस करोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते जाएंगे, तुम इसको अपने दिमाग में बिठाते जाना इन स्टेप्स को। लास्ट में फिर हम इसके ऊपर आखिरी क्लास में डिस्कशन करेंगे। केतन, free traders, why they wanted to remove East India companies? Because East India Company is a separate entity, वो एक ग्रुप है जो सारे ट्रेड को मोनोपोलाइज करके बैठा हुआ है। अब इंग्लैंड में फ्री ट्रेडर्स हैं, हर आदमी कैपिटलिस्ट है, हर आदमी चाहता है कि वो इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड आ जाए। फ्री ट्रेडर मींस फ्रीडम ऑफ ट्रेड, लेजिस्लेयर, स्टेट इंटरफेरेंस ना हो। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है। स्टेट ने एक कंपनी को मोनोपोली दी है। ऐसा सोचो कि आज इंडिया की सरकार बोले कि इंडिया में फोन सिर्फ जियो के ही होंगे और कोई होंगे ही नहीं, फिर जियो बोले हम 500 रुपए की कॉल देंगे, तो फ्री ट्रेड होना चाहिए ना। जियो भी हो, आइडिया भी हो, एयरटेल भी हो, टाटा भी हो, कितने सारे होंगे, तो कॉल फ्री हो जाएगी ऑलमोस्ट। वो बोलेंगे चलो फिर हम सस्ती कर देते हैं कॉल्स। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं तुमने मोबाइल कब यूज किया, लेकिन जब मैंने पहली बार मोबाइल यूज किया था तो इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते होते थे 8 रुपए पर मिनट। 8 रुपए पर मिनट लोकल कॉल के, इनकमिंग के। केतन, तुमने 1998 में मोबाइल यूज कर दिया था? अच्छा, मैं घबरा गया। When were you born, केतन?
अच्छा 1996 ओके। चलो फिर बाय, कल मिलेंगे। अब कोई डाउट हुआ सो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। बाय बाय, टेक केयर।